Okay, hello students. So we are going to start our new topic, that is of the political science, or we can say SPL or civics. So our first chapter is what is democracy, why democracy. In 8th class we have done that we in India we have democratic form of government. But what is democracy and why democracy? We will study about these two questions. We will find out the answers of these two questions. So, uh, if simply we will discuss that what is a democratic government, so it is the rule of people for the people and by the people. This statement was given by Abraham Lincoln, that was the former president of United States of America. So it is very famous, and most of the people they define democracy in this way, that this is the form of government for the people, by the people, and of the people. So we will today we will find that what is the difference between this definition and other definitions, or the definition given in our chapter, how it is different, and why the definition of the democracy or anything we need, why we require a definition. Okay, so we will find out that thing in our chapter, what is democracy and why is democracy. So 1.1 topic is there, what is a democracy. So let's discuss. You have already read about different forms of government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. So we have listened about different kind of government, like monarchy, like dictatorship, like army rule. Okay, so this kind of governments are present in the world. Different countries have different kind of governments. So how these are different from the democratic government? Okay, so we will find out the features of these two kind of governments, democratic government and non-democratic governments. So the first feature of democratic government is that the government of the democracy is elected by the people, from the people. But non-democratic government may they have hierarchical ruler, or they have army ruler, or they have any dictator. Okay, so this is the major feature and major differences between democratic and non-democratic form of government. So here is why definition is required. Okay, so definition in this discussion, it is a class discussion between Mary and her madam Lingdo and her classmates. So they explained that any definition is required because of specific use of the words. Suppose हम पेन वर्ड यूज़ करते हैं, पेन, ठीक है। अब देखिए पेन सभी को पता होता है कि लिखने वाला पेन, ठीक है। लेकिन अगर कुछ एक लोग पेन वर्ड किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें, ठीक है, किसी और जगह पे यूज़ करें, तो वो चीज़ गलत हो जाती है ना। तो अगर तो यहाँ पे डेफिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि सपोज कीजिए कि ये पेन वर्ड है, किसी दो चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है एक ही जगह पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि ये पेन किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो हमें वहाँ पे उसकी डेफिनेशन देनी पड़ती है,
ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है, आज वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, जितनी भी तरह की गवर्नमेंट्स हैं, सारी अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शो करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उसमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए, उनको डिफरेंट करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए कि वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है, हमें डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस बच्चे ने यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है उसका मीनिंग बताया, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और इज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक लैंग्वेज है एक, ठीक है। इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल, ठीक है। तो यहाँ पे डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, एंड क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो इससे क्लियर हो जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया रूल ऑफ पीपल। सम डेमोक्रेसी, सो डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपल, ठीक है। लोगों के द्वारा रूल किया जाना, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस अगर हमें यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया, तो आगे हमें डेफिनेशन की क्यों ज़रूरत है वो भी आएगा, क्योंकि जो डेफिनेशंस है हम हर एक बंदा अपने हिसाब से उसका यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि डेमोक्रेसी है, अगर हम सिंपली यूज़ करते हैं डेमोक्रेसी वर्ड और कह देते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होती है उसको डेमोक्रेसी कह देते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ इतना ही आइडिया लिया जाए तो वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, उनमें डेमोक्रेसी के फीचर्स नहीं होते, इसीलिए वो डेमोक्रेसी नहीं होती। सपोज कीजिए एक बार लोगों ने जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट कर दी, उसके बाद 10, 15, 20, 30 सालों तक, 50 सालों तक दोबारा इलेक्शन ही नहीं हुए, तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि डेफिनेशंस और इसके फीचर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए अ सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। एक सिंपल सी डेफिनेशन, शॉर्ट डेफिनेशन, किस तरह से हम इसको एक बेसिक आइडिया लेने के लिए एक स्टार्टिंग डेफिनेशन हम करते हैं। देखिए, लेट्स गेट बैक टू आर डिस्कशन ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट्स, ठीक है। अपन ने यहाँ पे डिफरेंसेस किए थे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस फाइंड आउट किए थे, that are called democracies. One simple factor common to all democracies is the government is chosen by the people. We could thus start with a simple definition, ठीक है। तो एक बेसिक जो फीचर होता है डेमोक्रेसी का, वो होता है कि इसमें जितने भी रूलर्स होते हैं या गवर्नमेंट होती है वो वहाँ के लोगों द्वारा चूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया, एक सिंपल डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है, जिससे हम इसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो वो आ गया कि जहाँ पे रूलर लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। दिस इज़ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिला है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में तो आइडिया तो हो गया कि किस तरह की गवर्नमेंट होती है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो वर्ल्ड में कुछ एक कंट्रीज़ के पास ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अपने आप को डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहती तो है, लेकिन रियलिटी में वो नहीं होती, ठीक है। तो उनसे डिफरेंस करने के लिए, उनसे डेमोक्रेसी को अलग करने के लिए ये जो डेफिनेशन है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। The army rulers of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army become the ruler of the country, ठीक है। तो अब जो म्यांमार है, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है म्यांमार, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें वहाँ पे जो आर्मी रूल है, मतलब कि वहाँ पे जो कंट्रोल है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसा कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ रूलर होता है, जो आर्मी का हेड होता है वही वहाँ का रूलर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि
जिसका कंट्रोल आर्मी के ऊपर हो गया वही उस कंट्री का रूलर बन के बैठ जाएगा, रूलर बन जाएगा। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, ठीक है। ये जो आर्मी रूल बनाने का जो डिसीजन है, इसमें लोग कुछ नहीं कर सकते, लोगों का कोई इसमें आइडिया नहीं था, कोई उनकी जो इसमें इंटरफेरेंस नहीं थी। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट, चिली एक कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ का एक रूलर था, डिक्टेटर था, जिसका नाम था पिनोशेट, ठीक है। आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं था, वो अपनी मर्जी से बना था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, अब जो मोनार्कीज होती हैं उसके ऊपर भी ये डिक्टेटरशिप वाली कंडीशन होती है कि वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं होते, वो भी या तो हायरार्कियल होते हैं, जैसे एक किंग है उसका बेटा ही आगे किंग बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो होते हैं। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया, अब देखिए सऊदी अरेबिया जो कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे किंग होते हैं, ठीक है। अब जो किंग है अगर उसकी डेथ होगी तो उसका बेटा ही आगे नेक्स्ट किंग बनेगा। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकम द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो, ठीक है। तो वहाँ पे जो किंग्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड थे रूल करने के लिए, वो पावरफुल थे, ठीक है, और स्टार्टिंग से ही उनकी फैमिली वहाँ पे रूल करती आई थी, तो इसीलिए वो आगे भी रूलर बन गए। बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली, तो ये वो रूलर क्यों बने थे, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया था उन्होंने, और जो रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं वहाँ पे वो रूलर बनते हैं, मतलब कि जो राजा की फैमिली में जिनका बर्थ होता है वही आगे जाके प्रिंस और प्रिंस के बाद वो वहाँ का किंग बनते हैं। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन ये हमने की थी, ठीक है, ये एडिक्वेट नहीं है। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं है, जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं है। आगे हम इसके आइडियाज़ को पढ़ेंगे क्यों पर्याप्त नहीं है। इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, बट इफ़ वी use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy। अब देखिए अगर हम सिर्फ बिना सोचे समझे इसी डेफिनेशन को ही समझ लें कि इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट बनती है वो डेमोक्रेसी है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो वर्ल्ड में जितनी भी गवर्नमेंट्स है जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन होते हैं हम उन सभी को डेमोक्रेसी कहेंगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे इलेक्शन होते हैं ये श्योर नहीं है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, क्योंकि जैसे चाइना है, ठीक है, तो चाइना में इलेक्शन होते हैं लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी है जो इलेक्शन करवाती है और वही जीतती है हर बार, तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, ठीक है, इससे हमें एक गलत अंदाज़ा मिलेगा, बहुत मिसलीडिंग हो जाएगी, मिसगाइडेंस होगी। एज वी शैल फाइंड आउट इन चैप्टर थर्ड नंबर जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह से गलत है। एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। कंटेम्प्रेरी का मतलब आज के प्रेजेंट का जो वर्ल्ड है उसमें हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना पसंद करती है, वो अपने आप को डेमोक्रेसी समझती है कि लोग उसे डेमोक्रेसी समझें, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं जिसके कारण हम उनको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इसके फीचर्स हम आगे पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा। Even if it is not so, that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretend to be one। अब देखिए इन चीज़ों के लिए अगर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, और वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहने की कोशिश करती है, डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करती है, ठीक है, तो हमें उस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें डेमोक्रेसी की क्लियर जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, इसके फीचर्स पता होने चाहिए, ताकि हम उसे मिसलीडिंग ना हो, ठीक है, और जो रियलिटी में डेमोक्रेसी है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाए, जो अनडेमोक्रेटिक है उसको नहीं।
वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। ठीक है, ये जो डेफिनेशन में जो वर्ड्स दे रखे हैं पहले तो उनको अच्छे से समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या जाता है, उसके बाद ही हम उसको उसकी जो उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एक रियल में जो डेफिनेशन है या रियल में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो किस तरह से हो सकती है। एंड स्पेल आउट द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसके बाद जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम एक ट्रू डेमोक्रेसी को समझ सकेंगे और उसको एक डिफरेंशिएट कर सकेंगे रियल डेमोक्रेसी में और जो फेक डेमोक्रेसीज हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो हम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट इसमें आएगा, ठीक है, वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये हम कल करेंगे।